ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੇਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਸਾ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਤਿਕੜੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਮਝ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, ज़िला मंडी धर्मपुर से हूँ, और मैं भी पिछले 2 महीने से इस आंदोलन का हिस्सा बना हूँ। अभी भी मैं 2 महीने के बाद सिंधु बॉर्डर से आ रहा हूँ, और यहाँ पे पहले भी मैं यहाँ रुका था, मैं फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका हूँ। और जिस प्रकार, चलो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार ये जो नेशनल मीडिया में
बार बार ये बात बोली जा रही है कि ये जो आंदोलन है ये केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 2 महीने से वहाँ उन्हीं बॉर्डरों में, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर में 2 महीने से हूँ वहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि ये केवल हरियाणा और पंजाब का आंदोलन नहीं है। जिस प्रकार से जो नेशनल मीडिया, जो दलाल मीडिया है, जो इस प्रकार का प्रचार कर रही है, जो इनका प्रचार तंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रचार तंत्र है, वो भी बार बार यही प्रचार करता है कि ये हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है। लेकिन अब इस आंदोलन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग हैं। आप वहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर त्रिपुरा, केरला, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, JNK, हर प्रांत का आदमी अब इस आंदोलन में है। और इस आंदोलन में सारे किसान, मजदूर, बेरोजगार और जो यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो नौकरियाँ करते हैं, वो भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो पूरा भारत, ये अब ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। और जिस प्रकार से ये सरकार बार बार एक षड्यंत्र रच रही है, जैसे मेरे भाई ने, आपने क्वेश्चन पूछा था कि जी देखो जी, एक सिख समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। जिस प्रकार 26 जनवरी की ये मैं आपको बात करूं, जो एक लाल किले पर जो झंडा फहराया गया, जिसको मीडिया ने इस तरह से मोड़ दिया कि ये जो है लाल किले में जो है खालिस्तानी का झंडा लगा दिया, जबकि वो झंडा जो था वो निशान साहब का झंडा था। लेकिन मीडिया बार बार यही प्रचार करती रही कि देखिए जी, किसानों ने, खालिस्तानियों ने, उपद्रवियों ने लाल किले पर जो है खालिस्तानी का झंडा लगा दिया, जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया। अब भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही इतिहास रहा है, आप पीछे का इतिहास भी देख रहे हैं। ये हमेशा लोगों को धर्म के आधार पर बांटती है, जाति के आधार पे बांटती है। और इनका जो मिशन था, 26 जनवरी का जो मिशन था, वो भी इनका यही था, जो एक षड्यंत्र था कि हिंदू और सिख को आपस में लड़ाया जाए। क्योंकि यह आंदोलन जो यहाँ से चला था, जो पंजाब से चला था, तो पंजाब में सिख समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को लेके चले थे और विरोध, और रास्ते में अपने छोटे भाई को जगाया और उसको साथ लेकर जो है दिल्ली पहुँचे थे। तो इनका एक षड्यंत्र इन्होंने इस प्रकार से इसको रचा हुआ था। और जैसे अब इस सरकार का आपने देखा होगा कि इस सरकार में जब भी 7 साल इस गवर्नमेंट को हो गए, जब भी कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, तो उसको या तो ये खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। स्टूडेंट अगर आवाज़ उठाता है अपने हक के लिए तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। तो इस तरह का तकमा चढ़ा दिया जाता है। जो नेशनल मीडिया है, जो बिकाऊ एक इनके पास जो मीडिया है, वो इस तरह के आंदोलन को का मोड़, जो आंदोलन है किस उसको बदला जाए। और आपने देखा होगा पीछे, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, मैं CA की बात करूँगा। दिल्ली में CA का आंदोलन हुआ था, इन्होंने उसको एक हिंदू मुस्लिम का एक वो दे दिया, तकमा दे दिया, और वहाँ पे दंगे हुए और हिंदू मुस्लिम कई बेगुनाह लोग मारे गए वहाँ पर, और वो आंदोलन वहीं ख़त्म हो गया। हरियाणा में इसके अलावा जो CA का है, वो आपकी बात हम मानते हैं, वो उस आंदोलन को भी जो बिल्कुल बर्बाद ख़त्म किया गया। बिल्कुल। लेकिन अभी जो आज सरकार है, पेट्रोल 100 रुपये से आगे जा रहा है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर है जो वो 800 पहुंच गया है। यही सरकार किसी समय ये नारे लगाती थी कि महंगाई है, तो अब महंगाई के साथ क्या इनकी दोस्ती हो गई? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है, बहुत बढ़िया बात की है। अब आप बताइए 2013 की बात, जब ये सरकार, इनके 3 मुद्दे होते, महंगाई, भ्रष्टाचार और काला धन। जो प्रधानमंत्री कहता था कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, नहीं लाया तो मुझे चुराहे पे फांसी दे देना, इस तरह की भाषा बोली जाती थी। और जो महंगाई की बात है, तो इन्होंने उस दौरान स्मृति ईरानी जैसे लोग और गैस सिलेंडर को सिर पे उठा कर और गले में जो है प्याज की माला डाल कर नंगा नाच करते थे, सड़कों में नंगा नाच, कहते थे कि महंगाई डाइन हो गई। और आज बताइए आप, जो सिलेंडर 2013 में 400 रुपये का था, आज वो डाइन कहाँ गई? आज वो 800 रुपये में जा रहा है। और जिस भ्रष्टाचार की ये बात करते थे कि हम इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, इन्हीं की ही सरकार में आप देखिए कितने लोग जो है बैंकों का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेकर विदेश भाग गए। नीरज मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी जैसे लोग करोड़ों रुपया जो है ले गए और आज विदेशों में है।
तो किस भ्रष्टाचार की बात करी? तो इन्होंने जो भी वायदे किए वो हमेशा एक जुमला था और लोगों को ठगा गया कि जी आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, आप बताइए। और इस तरह से लोगों को ये गुमराह करते रहे। ये गिरगट की तरह रंग बदलते हैं और इनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और हमेशा मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं, लोगों को लड़ाने की बात करते हैं और जो डेवलपमेंट की बात कभी नहीं करते। आप देखिए आज मीडिया हमारा इतना दलाल और इतना बिका हुआ है कि कभी भी वो डिबेट बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या इस पे नहीं करते हैं। आज देश की हालत देखो। कुल मिलाकर अगर हम ये देखें जी। कि इस देश को चलाने में बीजेपी की सरकार नाकामयाब हो रही है। बिल्कुल ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ देखो की नाम जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम गुलाब सिंह माणकपुर, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन वाला। ये देश को चलाने में फेल इसलिए है भाई मोदी सरकार ने जितने भी वायदे किए एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं किया। ये कहता था भाई साहब ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बातें कही, कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं, इसकी जितनी भी त्रुटियां थी गिना कर रख दी। तो मोदी जो किसानों की, मैं एमएसपी की बात करता हूँ, ये कहता है एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अगर इसके अलावा ये जुमला प्रधानमंत्री कोई और इसके अलावा कोई और बात कहता तो हम बात मान लेते। ये तो झूठ बोलता था, झूठ बोल रहा है और झूठ बोलता रहेगा, इसलिए हमें इसकी बात पर विश्वास नहीं है। हम कहते हैं भाई हमारी एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दो तो हमारी आधी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त हो जाती है। काले कानून ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे, उनमें रहते ही कुछ नहीं अगर एमएसपी को गारंटी दी जाती है। तो ये सरकार जो वायदे करती है किसी को पूरा नहीं करती। ये कहता था देश नहीं बेचने दूंगा, तो किसान रह गए थे, बाकी सब कुछ बेच दिया। अब ये किसानों को भी ये अडानी अम्बानी के पास गिरवी रखना चाहता है। बार बार एक बात आती है, वो कहते हैं कि ये जो दिल्ली की सरहदों पे बैठे हैं ये किसान नहीं हैं। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वे जो दिल्ली की सरहदों पे बैठे हैं वो कहीं चाइना से तो नहीं आ गए? तो इसको तो ना अपना जो भी इसके खिलाफ बोलता है तो किसी को ये खालिस्तानी कहता है, किसी को उग्रवादी कहता है, किसी को माओवादी कहता है। अब तो किसी ने एक गंदी भाषा और भी बोलनी चाहिए, परजीवी, आंदोलनजीवी। परजीवी हम इसके लिए वाकई परजीवी हो गए। परजीवी होते हैं चिच्चड़, जूं। अब ये हम चिच्चड़ की तरह इसको चिमड़ गए, इसका खून चूस कर छोड़ेंगे। हम बताते हैं कि भाई हम वाकई परजीवी भी हैं और किसान भी हैं, तेरे अंदर खून का तिनका नहीं छोड़ेंगे, चूस जाएंगे तेरे। जैसे तुमने किसानों का खून चूसा है, गरीब जनता का खून चूसा है, ये परजीवी और आंदोलनजीवी तेरा खून चूस जाएंगे। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਸੀ। जी हाँ जी हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं बलविंदर सिंह, गांव मलौर, जिला अम्बाड़ा, हरियाणा, भारत। मैं मोदी जी को पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। मैं अब सिंधु बॉर्डर पे बैठा हूँ, सिंधु बॉर्डर पे भी गया हूँ, मैं अपना दिल्ली बॉर्डर पे गया हूँ। क्या मैं खालिस्तानी हूँ? मैं किसान हूँ। मत छेड़ किसान को मोदी, मत छेड़ किसान को, लड़ना औखा होगा, ऐसा लिखेंगे इतिहास के पढ़ना औखा होगा। हम वो किसान हैं जिन्हों के पूर्वजों ने, अजीत सिंह, किशन सिंह, घसीटा राम ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था। अजीत सिंह, किशन सिंह, घसीटा राम, तीनों ने 1906 में जी तीनों ने जो पगड़ी संभाल आंदोलन के नाम से लागू हुआ था, जिसको बांके दयाल ने उस गीत को लिखा था। शायद लोग ये सोचकर कहते हो कि शहीद फिल्म में, मनोज कुमार की फिल्म में गीत था, ये नहीं, ये उससे पहले का गीत था। जो अपने लायलपुर में अंग्रेज़ों ने ज़मीन दी थी, भी उसको किसान सीधा करो, इसको चालू करो, कहने का मतलब उपजाऊ, फसल के योग्य। वो किसानों ने फसल के योग्य बना दी। यही 3 कानून अंग्रेज़ लेकर आए थे उस समय। भारत माता सोसाइटी के बैनर के नीचे ये आंदोलन लड़ा गया था और अंग्रेज़ों ने 9 महीने तक हमारे पूर्वजों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया था। अंग्रेज़ों को अपने बच्चे इंग्लैंड में ले जाने पड़े थे। मोदी क्या समझता है? मोदी हमें छोटे में मत आंक, हम तेरे साथ पूरे तेरे इलेक्शन तक भी तेरे साथ लड़ाई लड़ेंगे और
यूपी में भी जाएंगे हम, बंगाल में भी जाएंगे, हम किसान हैं। वो हमें कभी लीडर बताता है, कभी राजनीति करने वाले बताता है, हम किसान हैं। पंजाब हमारा भाई है, हम पंजाब में से ही अलग हुए हैं। हमारा पंजाब तो पाकिस्तान से लेकर करनाल तक, दिल्ली तक होता था। हिमाचल प्रदेश भी हमारा ही हिस्सा था, हरियाणा भी उसी का हिस्सा था पंजाब का। जो हमें कभी खालिस्तानी बताता है, कभी इसको जाट वर्ग के नाम पर बांटने की कोशिश करता है। ये तो जाटों का आंदोलन है। किसान की कोई जात नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है। हम किसान के अलावा जैसे भाई साहब ने भी बताया कि एक किसान ही नहीं, हर वर्ग दुखी है। क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल की, हमने गैस सिलेंडर की बात की, तो एक किसान ही नहीं, अब तो हर एक वर्ग, हर एक गरीब से लेके हर एक इंसान जो परेशान है। तो मैं वही बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार इस देश को चलाने में क्या फेल हो रही है या नहीं? बिल्कुल फेल हो गई है जी। जितने भी इतने ने जुमले छोड़ने थे वो छोड़ चुके। हर किस्म से, हर तरफ से, ये किसी भी आदमी से पूछ के देख लो, किसी व्यापारी से पूछ के देख लो, हर जो तबका, व्यापारी से पूछ के देख लो, हर जो तबका है, मीडियम तबका, लोअर तबका, सभी लोग दुखी हैं इससे। और ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और इसके बहुत थोड़े दिन बचे हैं। मैं फिर दोबारा मोदी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो बचा ले। ये तीनों कानून वापस कर लो और MSP पे कानून बना दो, शायद आपकी इज्जत बच जाए और हम भी अपने घर चले जाएं। हाँ जी, तुझे कुछ कहना चाहते हैं? आपने ये सवाल किया है कि क्या बीजेपी सरकार जो है मतलब फेल है काम करने में, जो आपने सवाल किया था। तो मैं ही तो कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आप बताइए, नौकरी देना तो छोड़ो, इन्होंने तो और लोग जो इंडस्ट्रियों में थे वो बेरोजगार कर दिए। और जितने भी सरकार के संस्थान थे, जितने भी सरकारी संस्थान थे, सारे बेच दिए। छोड़ा क्या है? आप बताओ, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, छोड़ा क्या है? और इस गवर्नमेंट में आप देखिए, जो देश की GDP है आज माइनस में जा रही है। कितना बुरा हाल है। जो हमारा जो रुपया था, एक बात कहते थे कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम रुपये को मजबूत करेंगे। रुपया मजबूत तो क्या करना है, आज हमारा जो रुपया है वो बांग्लादेश का जो टक्का है उसकी कीमत भी ज़्यादा है। तो बताइए इन्होंने क्या किया है? पूरा देश को कंगाल कर दिया। और ऐसी सरकार जो RBI, आप बताइए, जो बुरे वक्त के लिए पैसा होता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बुरे वक्त में निकाला जाता था, जब देश की स्थिति बहुत दयनीय होती थी, बुरे वक्त के लिए रखा जाता था जो पैसा, उस पैसे को भी सरकार ने निकाल दिया, कंगाल कर दिया। RBI से लाखों करोड़ों रुपया जो है निकाल दिया इन्होंने, और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया। अब बताइए, आम आदमी के लिए उस पैसे का, जो RBI से इतना 1000 करोड़ रुपया इन्होंने निकाला, वो आज वो पैसा आम आदमी को मिला? इन्होंने अपने जो उद्योगपति साथी थे सबको लोन देकर और वो सारा पैसा बांट दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। तो इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? आज बेरोजगार साथी देखो, रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, सड़कों में हैं लोग। और देश की GDP देखिए आप, क्या हालत है, इस देश की क्या हालत बना दी है। आज अगर इस सरकार में कोई आंदोलन करता है, सभी लोग सड़कों में हैं। अब देखिए आप यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया और 200-250 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी, लेकिन मोदी ने अभी तक भी किसानों के लिए एक शोक संदेश प्रकट नहीं किया। आप बताइए कैसे प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रधानमंत्री को इन्हीं किसानों ने, इन्हीं मजदूरों ने, इन्हीं कर्मचारियों ने आज फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया। ये किसने बनाया? लोकतंत्र के माध्यम में यही किसान थे, इस देश के किसान, यही मजदूर था जिन्होंने इस पे ऊपर भरोसा करके इसको आज देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज वो आपने देखना, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो आंदोलनकारी इसके खिलाफ में आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करते, तो उनके लिए क्या भाषा बोली जाती है? प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि ये आंदोलनकारी है, जीबी है, परजीवी है। इस तरह की भाषा, एक गरिमा की पोस्ट में बैठते हुए आप देश के प्रधानमंत्री हैं और अपने देश के लोगों को वो रोने भी लग गए थे, देखा क्या? और उस अपने देश के लोगों को आप जीबी और परजीवी कह रहे। उस अन्नदाता को जो देश का पेट भरता है उसको आप परजीवी कहते हैं, इस प्रकार की संज्ञा देते हैं। तो आपने तो अपनी गरिमा, जो एक प्रधानमंत्री की गरिमा है, उसको गिरा दिया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है? और ये
आज ये जो भारतीय जनता पार्टी है लोकतंत्र की हथियारा है, लोकतंत्र को नहीं मानने वाली है और देश के संविधान को नहीं मानते हैं ये लोग। अब जिस संविधान ने चाहे वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और जिस संविधान ने एक तड़ी पार को देश का होम मिनिस्टर बना दिया, वो वही संविधान है। इसी संविधान की ताकत है जो एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज वो उसी संविधान को नहीं मान रहे हैं। ये जो आंदोलन है एक संविधानिक लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है और उस पे भी ये ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, माओवादी बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या इस सरकार में, सरकार के खिलाफ बोलने में क्या कोई देशद्रोह हो जाता है? और कितने और जिनके जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे सीबीआई है, ईडी है, आज जो है जितनी भी एजेंसी हैं, सरकारी एजेंसी, आज लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर झूठे केस और मुकदमे बनाए जा रहे हैं और उनको डराने और धमकाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कह दूं कि मोदी जी, चाहे आप जितना मर्जी षड्यंत्र रच लो, जितने मर्जी केस बना लो, जितने मर्जी लोगों को परेशान कर लो, लेकिन ये किसान अब जाग चुका है। इस देश का मजदूर, किसान सभी जाग चुके हैं। आपके जितने भी षड्यंत्र हैं नहीं है और आप ये सोचेंगे कि ये षड्यंत्र रच के लोगों को डरा के धमका के हम ये लोग भाग जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। किसान अब इस, जब तक आपने ये 3 काले कानून वापस नहीं किए तब तक ये किसान डटा हुआ है, बिना किसी डरे, बिना किसी भय के यहीं रहेगा मैदान में। चाहे ये आंदोलन 1 साल चला जाए, 2 साल चला जाए, 3 साल चला जाए, लेकिन लोग यहाँ से ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ? देखो जी, बड़े दुख से कहना पड़ता है, इस देश की रक्षा करने वाला किसान का बेटा है। किसी IAS का बेटा कोई आर्मी में नहीं, किसी राजनीतिज्ञ का कोई बेटा किसान जवान नहीं है, फौज में नहीं है। हर बड़े बड़े ये जो कॉरपोरेट घराने हैं इनका कोई बच्चा फौज में नहीं है। किसान हर मौजूद के बेटे हैं जो देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा करते हैं। हर देश को पेट भरने वाले वही किसान हैं। और आज जय जवान जय किसान का अगर कोई अपमान कर रहा है वो बीजेपी सरकार है। ये मैंने मेडल में पहले नहीं पहनता था, जब हमारे कुछ जवान मेडल पहनकर इस आंदोलन का हिस्सा बनने आए तो इस सरकार ने एक फरमान जारी किया भी कोई भी रिटायर एक्स सर्विसमैन मेडल पहनकर आंदोलन में नहीं जाएगा। मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है ये जो मेडल मिले हुए हैं ना, ये कंधे के श्रृंगार के लिए नहीं मिले, ये हमारे तिरंगे की आन बान को बचाने के लिए। ਇਹ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਡਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ तो कितने दुख की बात है, कितनी गिर चुकी है सरकार ये। मैं तो, हमें तो ये बात कहते भी शर्म आती है भी ये ऐसी बातें करती है, तो ये सब अपना आपा खो चुकी है। तो कुछ हमारे आर्मी अफसरों ने भी ऐसी टिप्पणी की है भी किसान ये ऐसा ना करें। वो कौन है जो भविष्य में राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में बैठे हैं? जब ये हम लोग 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी पहन कर जाते तब हमें किसी ने नहीं कहा, तब उन लोगों को भी 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा होने वाला था। तो ये सरकार तो जितने भी घटिया हथकंडे अपना रही है उनकी गिनती नहीं की जा सकती। जो बात रही आपने, जो मोदी उस दिन रोया लोकसभा में, वो जब गुलाम नबी आज़ाद की विदाई पार्टी थी मेरा घर उस दिन, वो उसको वो अपने दिन भी याद गए। वो सोच रहा भी जिस दिन तू रिटायर होगा तेरा क्या होगा कालिया, वो उस वक्त को याद करके रोया, वरना वो रोने वाली कोई बात नहीं थी। और वो सोच रहा था कि जैसे डकैत के आंसू ये सुनामी बनकर
हमारे खिलाफ खड़े हो गए। शायद ये मेरे नकली आंसू भी, मैं इन नकली आंसुओं से हम हमदर्दी बटोर लूँगा लोगों में, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो कुछ दिन पहले अमित शाह की अगुवाई में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जो किसान लीडर थे उनकी मीटिंग हुई अमित शाह के साथ। तो हम बड़ी होपफुल थे कि शायद इस मीटिंग में ये हमारे किसान नुमाइंदे हैं, ये किसानों के हक की बात बताएंगे, ये सरकार को समझाएंगे कि ये काले कानून किसानों के खिलाफ हैं, तुम इनको वापस ले लो। हम तो इस उम्मीद में बैठे थे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूजा, बात बिल्कुल उल्टी निकली। अमित शाह ने बोला भी जाओ, जनता में जाओ, लोगों में जाओ, इनके भ्रम दूर करो। लेकिन हम बड़े मज़े की बात है, पंजाब में निगम के चुनावों ने वो इनके हमारे भ्रम तो ये क्या दूर करना चाहती थी, इनके ही भ्रम दूर कर दिए लोगों ने। इनकी ऐसी पतीली मांझी ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। पतीली भी मांझनी एक पाउडर से होती है, एक पानी से होती है, लेकिन वो सुख मांझ कर दी। सुख मांझ समझते हो, सुख की रगड़ाई की उसकी भी, परत घिसा कर रख दी उसकी। दूसरी बात, एक बड़ी मज़े की बात है, ये आंदोलन, किसान आंदोलन पंजाब से चला था, हरियाणा से होते हुए राजस्थान, यूपी, बिहार, अमेरिका तक पहुंच गया। अमेरिका में इस आंदोलन की वजह से ट्रंप की सरकार गई। जो वहाँ किसान थे, ट्रंप का साथ देते थे, उन्होंने ट्रंप का साथ नहीं दिया। अमेरिका में ट्रंप की सरकार गिराई। और यहाँ फिर ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था। सबसे पंजाब में पहले इनकी पतीली मांझी, अब हरियाणा में मंजेगी, तो धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इनका बोरिया बिस्तरा सफाया हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। आप भी समझाना चाहिए इसको, काले कानून वापस ले लें। मैं एक आज आपके चैनल से एक हमारे किसान भाइयों को, हमारे देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सारे भाई भाई। आओ मिलकर अन्नदाता की लड़ें लड़ाई, इसी में है हम सब की भलाई, इसी में है हमारे देश की भलाई। जय जवान जय किसान। एक नारा मैं भी, हाँ जी, जाते जाते एक नारा मैं भी बताऊंगा। मैं कहूँगा, पहले लड़े थे गोरों से, आपने बोला अब लड़ेंगे चोरों से। हाँ, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। सो बहुत 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 ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ।